ٹھہرو. میں تو ہار چکا تھا. یہ فتح تمہاری ہے خالد. ہماری فتح ادھوری ہے جب تک محمد زندہ ہے. وہ اوپر ان چٹانوں میں ہے. ہمارا کام پورا ہو گیا. ہم بدر کا انتقام لے چکے. ہم ابھی اسے اور اسلام کو مٹا سکتے ہیں. اس کے کچھ دیوانے اب بھی اس کے ساتھ ہیں. ہم خطرے میں پڑ سکتے ہیں. انہیں بلندی پر ہونے کا فائدہ ہے. محمد سن لو. دن کے بدلے دن. یوم احد انتقام ہے. انتقام بدر. تمہارے مردے ہمارے مردوں کا جواب ہے. ہمارے شہید جنت میں ہیں. تمہارے مردے جہنم کی آگ میں. حمزہ حمزہ سن رہے ہو حمزہ؟ دیکھ رہے ہو یہ میں ہوں. میں ہند. کچھ یاد آیا حمزہ؟ کیسے قتل کیا تھا میرے باپ اور میرے بھائی کو؟ تم بھی قتل ہوئے. دل میں ٹھنڈک پڑ گئی. سنا تم نے حمزہ؟ ٹھنڈک. موت کو میرے انتقام مت سمجھو. کچھ بھی نہیں ہے موت. واشی چاک کر دے اسے. کاٹ دے. یہ جنگ ہارے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کاموں میں اور زیادہ مصروف ہو گئے. پاگل ہیں. ٹھیک کہتے ہو. یہ ہیں ہی بے تکے. یہ تو ہار کے بھی بہت خوش ہیں. کہتے ہیں یہ شکست خدا کی طرف سے ان کے ایمان کا امتحان تھا. او ہاں، یہ جنت کے لیے لڑ رہے ہیں. یقیناً پا ہی لیں گے. جنت نہیں، مکہ. جاگتے میں خواب دیکھ رہے ہیں. ان کا غلط اندازہ مت لگاؤ. میں نے بہت مشکل سے ان کو سمجھا ہے. میرے دوست، مکہ ان کے لیے گھر سے بڑھ کر ہے. وہاں خدا انسان سے ہم کلام ہوا. مکہ کے لیے ان کی روحیں تڑپتی ہیں. اس برس انہوں نے حج کی ٹھانی ہے. کیا؟ نہتے. نہتے؟ ابو سفیان تو انہیں ذبح کر دے گا صحرا میں. اگر تم بھی ان کی طرح ایک خدا پر ایمان رکھو تو اس طرح صحرا میں ذبح ہونے سے بچ جاؤ گے. لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے. میں تم سے متفق ہوں.
بہکنا مت، خود کو قابو میں رکھو، وہ تو یہی چاہتے ہیں، جمے رہو۔ تم پر سلامتی ہو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، وہ جنہیں اللہ سے محبت ہے تجدید عہد کریں درخت کے نیچے۔ انہوں نے کسی اور کو بھیج دیا؟ سہیل ہے، اس کا مطلب ہے معاہدہ ہو جائے گا۔ محمد، صلح نامے کی شرائط تو تمہیں پہنچ گئی ہیں۔ اگر تم آنا چاہتے ہو مکہ تو پھر اتنا تردد کیسا؟ یہ کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان۔ محمد خدا کا رسول۔ اگر میں تمہیں ایک رسول مانتا تو تم سے لڑتا ہی کیوں؟ اسے لکھو، محمد بن عبداللہ متفق ہے سہیل بن عمرو سے۔ میں تو یہی جانتا ہوں، اور سچ بھی یہی ہے۔ خوب، یہ بہتر ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ اس سال تم حج نہیں کرو گے، یہیں سے پلٹ جاؤ گے اپنے اپنے گھر۔ گھر تو مکہ ہے۔ بہرحال تم اگلے سال حج کے لیے آ سکتے ہو۔
لیکن صرف 3 دن، صرف آؤ اور جاؤ. ہمیں قبول ہے کہ اگلے 10 برس امن کے ہوں گے. اس دوران تم کسی قبیلے پر حملہ نہیں کرو گے اور نہ ہی لوٹو گے کوئی کاروان، اور اس سے بھی جو کوئی ہمارا دوست ہو. ہم بھی یہی کریں گے. اگر تم نے ہم میں سے کسی کو ضرب لگائی تو معاہدہ ختم. ہم بھی پابند رہیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ دس سال، امن کے 10 برس، اتنا وقت درکار ہے برائے استحکام اسلام. یہ خطوط رسول اللہ کی طرف سے دنیا کے حکمرانوں کے نام، اسلام کا پیغام. شہنشاہ بازنطین، کسرا، شہنشاہ فارس، مقوقس، والی سکندریہ. اللہ حافظ و ناصر. نسلی عصبیت کو ختم کرتا ہے اسلام. عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، نہ ہی ایک گورے کو کالے پر. اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں. جب تک تم اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند نہیں کرتے جو اپنے لیے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں. اگر کوئی پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، وہ نہیں ہے مسلم. عالم کے قلم کی روشنائی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے. ایک خواندہ شخص اللہ کو بہت پیارا ہے تو پڑھنا سیکھیے، اور جب سیکھ جائیے تو اوروں کو پڑھائیے. یہودی ان کی تورات، عیسائی ان کی انجیل، ان کا احترام بھی تم پر واجب ہے، کیونکہ یہ کتابیں بھی اللہ ہی کی ہیں. محمد تم سب میں افضل ہیں مگر انسان ہیں. ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں چن رہے تھے. میں بولا لائیے میں چن دوں. فرمایا تم کیوں؟ میں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ کام آپ کے کرنے کے نہیں یا رسول اللہ. تب انہوں نے مجھے دیکھا، دھیرے سے کہا اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہو. میں آرام سے بیٹھا انہیں دیکھتا رہا. اچانک وہ رکے اور کھڑے ہو گئے اور میری طرف آئے. فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا بیتے گی. امر کہیں پھر لے جانے تو نہیں آئے؟ نہیں، اس بار اپنے آپ کو تمہارے حوالے کرنے آیا.
मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। आपके खिलाफ लड़ने पर अल्लाह मुझे माफ फरमाए। इस्लाम साबिका गलतियां मिटा देता है। माफ कीजिए, इन समेत चला आया। ये मेरे जवाहरात हैं, जो भी कीमत हो इनकी गरीबों के लिए हाजिर हैं। और ये मैं आपके कदमों। रुको, तुम तो खुद इस्लाम के खिलाफ जहन में बशी तलवार थे। मगर अब इंशाअल्लाह मैं अल्लाह की लपकती तलवार हूं। अल्लाह के लिए सब आसान है। जैसे वो जिंदगी और मौत पर कादिर है, उसी तरह फतह और शिकस्त पर भी। 2 बरस पहले जब सुलह का मुआहदा करना पड़ा तो लगता था जैसे शिकस्त हो गई, मगर देखो हुआ क्या। हम लोगों के दिलों को फतह पर फतह करते चले जा रहे हैं। ये क्या था? देखो देखो, अबू सुफियान आया है। मेरे साथ ऐसा सलूक? मैं हूं अबू सुफियान। कुछ तो लिहाज करो। हम में लड़ाई नहीं, सुलह है। मैं मोहम्मद से बात करने आया हूं। कहां है वो? वो मस्जिद में है। मोहम्मद, मुआहिदा हमने नहीं तोड़ा। मैं यकीन दिलाने आया हूं कि मुआहिदा नहीं टूटा। मक्का यही चाहता है। मोहम्मद, मेरी बात तो सुनो। रुको तो। मोहम्मद सुनो तो। लुटेरों ने मुआहिदा तोड़ा है, हमने नहीं। रात तारीख थी। मैं गवाही देता हूं कि रात तारीख थी। बर्रा, मैं तुम्हारा मेहमान हूं। हुज़ैफा, तुम तो मेरे अपने हो, मेरे दोस्त हो। इनसे कहो मेरी बात तो सुने। मैं हूं मक्का, मैं हूं सरदार मक्का। मेरी हदक इस तरह क्यों की जा रही है? तुम वादे का पास करते हो, न मुआहदे का एहतराम। मैं वो सुन रहा हूं जो सोच भी नहीं सकता था। अबू सुफियान रहम की भीख मांग रहा है। गुफ्तार से, तलवार से, किरदार से गडरी ने हमें बिछाड़ दिया। तुमने देखा उस गडरी का दीन एक कंकर से चट्टान बन गया। वही कंकर तो मेरी आंख में था।
मैं कुछ न देख सका। कह दो मक्का से खुदा मर चुके, अब अल्लाह का इनकार बेकार है। अब तेजी से निकल जा, तू यहां के हर आदमी को अपने पीछे पाएगा, क्योंकि तू मायदा तोड़ चुका है। शाम ढलने से पहले हम 10,000 होंगे, हर कबीला शामिल होगा। हम अपना दिफा कर सकते हैं, तुम हो ना? हम रास्ते बंद कर देंगे और शहर का दिफा अंदर से करेंगे। कोई फायदा नहीं, वो हजारों में हैं, हर लम्हा उनकी तादाद बढ़ रही है। बुज़दिल, हिंद घर जाओ। इतना बुज़दिल है सरदार मक्का? क्या ये तुम हो? तुम कुछ भी नहीं, वो तुम्हें चबा के थूक चुके हैं। क्या मेरे बाप और भाई ने इसलिए कुर्बानी दी कि मेरा शौहर भाग जाए? तुम घर जाओ, तुम। बेकार है, मक्का छिन गया है। नहीं नहीं नहीं, आज रात यहां पड़ाव करना है। इन पहाड़ियों के बावजूद दिखाई दे रहा है मुझे मक्का। इतने सारे अलाव तुम गिन नहीं सकती। कितना हसीन मंजर है। जब हमने उन्हें निकाला था, मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि ये लोग मक्का अपने साथ ले गए। हवा में ताजा पकती रोटियों की महक है। हाँ, इसका मतलब है वो लूट मार नहीं करेंगे। कम से कम मेरा उनके बारे में यही ख्याल है। वो अपने घरों की दरो दीवार पर अपनों का खून बहाना पसंद नहीं करेंगे, इस पर मैं शर्त लगा सकता हूं। मुझे उसके पास ले चलो। तो मक्का हवाले करने आए हो? मुझे रोटी में शरीक नहीं किया? मुझे अंदाजा है शायद तुम मुझे कत्ल कर दो। कहो क्या कहने आए हो? मैंने तुम्हारे अलाव देखे, उनके गिर्द आदमी। मैं जानता हूं तुमने अपने आदमियों में कैसी आग जगा दी। तुम जीत गए मोहम्मद।
अब अगर तुम ये मान लो, अब भी इतनी जरूरत की शराइत पेश करो। क्या तुम अब भी नहीं पहचाने मोहम्मद कौन है? मोहम्मद, मेरे दिल में अब भी शक है। अगर तुम्हारा सर काट दिया जाए तो शक दूर हो जाएगा। खालिद, दीन में किसी तरह का जब्र नहीं। हिदायत पाने में किसी को बरसों लगते हैं, किसी को एक पल। वक्त का तय्युन सिर्फ अल्लाह करता है। उनके शक का एहतराम करो। तुम हबश गुलाम, तुम बेहतरीन मुअल्लिम हो। मैं तो कुछ भी नहीं, सब अल्लाह की अता है। जिन खुदाओं की मैं परस्तिश करता रहा, किसी काम के होते तो जरूर मेरी मदद करते। तो मैं ऐलान करता हूं, अल्लाह एक है और तुम अल्लाह के रसूल हो। अब मुझे इजाजत दो। वो तीन अतराफ से आ रहे हैं, वो तीन अतराफ से आ रहे हैं। भागो भागो, यहां से निकल जाओ। वो लोग आ गए हैं, चारों तरफ से घेर लिया। निकल जाओ, जगह को खाली कर दो, जाओ। जाओ जाओ, अंदर चले जाओ। छुप जाओ, अंदर जाओ, भागो।
توڑا جائے، کچھ نہ لوٹا جائے، کچھ نہ چرایا جائے، کوئی زیادتی نہ ہو، جو گھروں میں ہیں محفوظ ہیں۔ At least he kept his word. We haven't forced the door. He storms hearts, not walls. It's a permanent victory. I dread going out. We must appear end. Were we so wrong? The way we lived, yes. That was wrong. We were trapped in our own faults. Our gods were less than us. Now there he is, making his entrance to the Kaaba. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب اللہ نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر صاف ستھرا رکھ، باطل مٹ گیا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. सो ये हुआ कि रसूलुल्लाह ने ना बदला लिया ना लेने दिया। उन्होंने मक्का की हुर्मत कायम की। मक्का में किसी जानदार की जान नहीं ली जाएगी, ना किसी का सर काटा जाएगा, ना कोई दरख्त। जल्द ही सारे अरब ने इस्लाम कबूल कर लिया और पूरे के पूरे इस्लाम के रंग में रंगे गए। ये सब कुछ आ हजरत ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वक्त नजदीक है। आपकी नबूवत का एक अजीम पहलू आपकी खत्म नबूवत है। हज्जतुल विदा के मौके पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, शायद आइंदा साल और इसके बाद फिर कभी तुमसे यहां मुलाकात ना हो सके। जो तुम्हें गरीब है उन्हें वही खिलाओ जो तुम खाते हो, वही पहनाओ जो तुम पहनते हो, कि सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। जो मौजूद है वो उन्हें बता दें जो मौजूद नहीं। तुम सब एक आदम की औलाद हो और तुम में सबसे बेहतर वो है जिसे अल्लाह का खौफ है। मैं जो कुछ कहूं उसे गौर से सुनो। अय्याम जाहिलियत के मकतूलीन का कसास और दियत दोनों खत्म की जाती है। याद रखो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। मुसलमानों में रंग, नस्ल और कबीले का कोई इम्तियाज नहीं। कोई मुसलमान किसी दूसरे के माल पर नाजायज तसर्रुफ नहीं करेगा, वरना ये एक दूसरे पर जुल्म हो जाएगा। लोगों, गौर से सुनो। जो चीज मैं तुम में छोड़े जा रहा हूं वो चीज निहायत वाज़ेह और रोशन है, और वो है अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अगर उसे मजबूती से पकड़े रहो तो कभी ठोकर ना खाओगे। फिर आपने तकमील दीन के हवाले से इस आयत की तिलावत फरमाई, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। 8 जून सन 632 में 63 बरस की उम्र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए। बहुत से उशाकान रसूल यकीन ही न करते थे कि आप फौत भी हो सकते हैं, लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया तो सहाबा शिद्दत गम से गश खाकर गिर गए। आपने फरमाया, अगर कोई मोहम्मद की प्रस्तिश करता था तो जान ले कि वो हम में नहीं रहे, और जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं तो अल्लाह बेशक जिंदा है और कभी मरने वाला नहीं। आपका लाया हुआ दीन इंसानों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया और फैलता चला गया। आज भी सारी दुनिया से मुसलमान मक्का आते हैं हज के एक ही जैसे सफेद लिबास में, खुदा की नजर में एक से एक उम्मत बनकर, और सब मिलकर एक ही खुदा की इबादत करते हैं।